morning, my dear people, teachers of B.Ed first year. The subject is Pedagogy of English, and today the topic is 4 basic skills, LSRW of English language. Listening, speaking, reading, writing. These are 4 basic skills on which we shall learn today. Teaching points are first introduction. Introduction will consist of all 4 basic skills, and then listening, speaking, reading and writing. First point, introduction. Every language has 4 skills: listening, speaking, reading and writing. These are the 4 pillars on which the language stands, can be learned, which are called the basic skills of the language, in which listening, speaking, reading and writing, this is the order of learning a language. First listening, and then speaking, then reading and then writing. Just as a child first listens other person talking, and then he try to speak, and then reading and writing is learned at school. Now listening and reading are receiving skill or receptive skill. Listening and reading, because we receive, हम रिसीव ग्रहण करते हैं, तो रिसीविंग स्किल कहलाती है. और स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड प्रोड्यूसिंग स्किल या प्रोडक्टिव स्किल. याद रखना, इनको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, क्योंकि कुछ निर्माण करते हैं. जब बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, लिखते हैं सोच समझ के लिखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्टिव स्किल. कौन कौन सी? स्पीकिंग और राइटिंग प्रोड्यूसिंग है, और लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है. दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कॉल्ड एक्टिव स्किल्स, क्योंकि लिसनर और स्पीकर दोनों एक्टिव होंगे तो ही कम्युनिकेशन हो सकेगा, तो ये एक्टिव स्किल कहलाती है. और रीडिंग राइटिंग का आदमी अकेला भी कर सकता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड पैसिव स्किल. ध्यान रखना, पैसिव स्किल रीडिंग एंड राइटिंग, एक्टिव स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग. इन दिस वे छोटा यदि आता है तो ये हमारा पैराग्राफ शॉर्ट नोट के लिए बेसिक स्किल के बारे में. नाउ come to the first skill, listening. Listening means receiving sound. This listening skill is the foundation skill on which other skills based, by which other skills can be learned. Because first a person has to listen and how people are speaking, then he learned speaking, and then comes reading and writing. So this is also called foundation skill. Listening is called foundation skill. This is a foundation. Now, importance of listening: the listener can recognize the English sounds. He can understand meaning of words, sentences, patterns, structure, phrase, etc. And now differentiation between listening and hearing. What is difference? छोटा प्रश्न आता है, छोटा क्वेश्चन आता है. What is difference between listening and hearing? तो hearing means the sound reaches to our ear. We are not attentive. We are not at all careful about that. Sound automatically come in our ears. That is called hearing. आवाज़ आती है हमारे कान के अंदर, हमने कोई प्लान बनाया नहीं था. We are not careful. We are not attentive, and the sound come to our ear. That is called hearing. And planned
and careful receiving the sound is called listening to get some information, news, etc. टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो ध्यान रहता है. When the person is attentively receiving the sound, that is called listening. And when the sound automatically enters into the ears, the person is not at all attentive, careful, then that is called hearing. Next skill comes speaking. A child in his family, in his house, first listens his family members speaking, pronouncing water, glass, table, chair, and he also try to speak these words. And then slowly, gradually he learns speaking. So speaking comes just after listening. Speaking means expressing ideas, thoughts, information through making sound is called speaking. What is speaking? Speaking is meaningfully expressing ideas, thought, information. Aims of teaching speaking, कल्टीवेशन यानी पैदा करना. कल्टीवेशन का मतलब पैदा करना. कल्टीवेशन ऑफ ऑडिबल का मतलब सुनने योग्य. ऑडियो विजुअल है ना. ऑडियो का मतलब सुनना, विजन का मतलब देखना. तो ऑडिबल सुनने लायक आवाज को पैदा करना. इंटेलिजिबल का मतलब ध्यान से, समझ करके, समझदारी से, यानी मीनिंगलेस नहीं. मीनिंगलेस तो पागल करता है, और सही आदमी क्या है, मीनिंगफुल बोलता है. तो कल्टीवेशन ऑफ ऑडिबल, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना. टू प्रोड्यूस करेक्ट साउंड, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, पॉज, ये सब इसमें आएगा स्पीकिंग के अंदर. समझते हो? सबको बताया हुआ तुमको. ये स्ट्रेस किसको कहते हैं? हाईलाइट सम वर्ड्स और सम सिलेबल. इंटोनेशन, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन इज कॉल्ड इंटोनेशन. रिदम का मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, दैट इज रिदम. पॉज का मतलब विराम, रुकना, स्टॉपिंग. तो ये सब स्पीकिंग में आएंगे. दिस शुड बी, दे आर द पार्ट ऑफ स्पीकिंग. एंड टू एक्सप्रेस थॉट, आइडियाज, ये सब करना एम्स है किसका? स्पीकिंग का. क्यों बोलते हैं हम? हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, हमारे जो दिमाग में आई हैं बातें उनको प्रकट करते हैं. नाउ रीडिंग मीन्स looking at printed or written symbols. जो सिंबल्स लिखे हैं, एल, बी, सब ये सिंबल्स है. ल, ब, म के लिए सारे सिंबल्स है. लेटर्स आर द सिंबल फॉर साउंड. तो रीडिंग मीन्स लुकिंग एट प्रिंटेड और रिटन सिंबल्स एंड कन्वर्टिंग एक्सप्रेसिंग इनटू करेक्ट मीनिंगफुल साउंड. उसको अर्थ सहित, जिसका अर्थ होता हो, मीनिंगफुल बात के अंदर एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड रीडिंग. रीडिंग, करेक्ट मीनिंगफुल साउंड. रीडिंग कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स, साउंड्स एंड सेंस. 3 बातें आती है. ये जो सारे अक्षर सिंबल्स है. सिंबल्स के बाद में क्या आता है? साउंड आती है. एल लिखा है तो ल की आवाज़ होगी, टी लिखा है तो प की आवाज़ होगी. तो फर्स्ट सिंबल, दिस इज ट्राइंगल. सिंबल, साउंड, सेंस, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? रीडिंग. फर्स्ट पर्सन लुक्ड एट द सिंबल, देन ही प्रोड्यूस द साउंड, एंड देन सेंसिफुल एक्सप्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड रीडिंग. ये इसको कहते हैं रीडिंग. सेंसफुल. बैकन क्या कहता है? बैकन का कोटेशन क्या है? रीडिंग मेकथ ए फुल मैन. मेकथ ये क्या? ओल्ड इंग्लिश है. मिक्स की इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश क्या है? मेकथ. तो बैकन बहुत साल पहले हुआ है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ध्यान रखो. किसने कहा है? ये तो बैकन ने कहा है. फ्रांसिस बैकन. क्या नाम है पूरा? FRANCIS. फ्रांसिस बैकन सेज रीडिंग मेकथ ए फुल मैन.
टाइप्स ऑफ रीडिंग मैंने सब पढ़ाए हुए, सब अलग अलग टाइप्स ऑफ रीडिंग का पूरा लेक्चर लिया हुआ है। ये स्कीमिंग, स्कैनिंग, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये रीडिंग के प्रकार है, 6 मुख्य प्रकार। ठीक है, क्या क्या होते हैं सब बताया हुआ है तुमको, पूरा लेक्चर लिया हुआ है इनका। राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड रीडिंग। ये प्रोडक्टिव स्किल है, ये प्रोडक्टिव स्किल है और इनएक्टिव है, ध्यान रखो। रीडिंग क्या है? रीडिंग इज रिसेप्टिव स्किल बट पैसिव। और राइटिंग क्या है? प्रोडक्टिव एंड पैसिव स्किल है। इन राइटिंग प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज, जेस्चर यानी हाव भाव, ये सब चीज़ें नहीं होती है राइटिंग में, ये चीज़ें एब्सेंट होती है, इनका कोई स्थान नहीं है। यहाँ कोई स्ट्रेस किसको देना वो ली है, जेस्चर आर एब्सेंट। राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल, so it is the last skill, it is the last skill. Purpose of writing, it is the process of communication. The sender desire to send a written message, information, etc., which means encoding. भेजने को क्या कहते हैं? encoding। और ग्रहण करने को क्या कहते हैं? decoding। तो means encoding message on paper with the help of letter, word, sentence, etc. These are all about the 4 skills, LSRW: listening, speaking, reading, writing. Now there are questions. Write a short note on a basic skill of language. तो पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का है वो तुम्हारा इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला सबसे छोटे आए तो भी ऐसा लिखो, और उसके बीच वाले आए तो भी ये लिखो। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है वो बता दिया तुमको। विच टीचिंग एड्स आर नीडेड टू लर्न लिसनिंग, लिसनिंग के लिए कौन से टीचिंग एड जरूरत होती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारी जो है जरूरत होती है, लिंगुआफोन इत्यादि। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के ऊपर एक नोट लिखिए छोटा सा। हु सेड रीडिंग मेकअप ए फुल मैन, फ्रांसिस बेकन। और राइट ए डिटेल्ड एसे ऑन LSRW, बड़ा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कोरोना के लिए आप किसी भी अनजान व्यक्ति से 6 फुट की दूरी रखना, और मुंह पर मास्क हमेशा रखना, और बाहर से जब भी कोई कैंडल वैंडल कहीं पर भी कोई ग्रिल इत्यादि किसी को भी स्पर्श करके आओ तो घर पे आके साबुन से हाथ धो, या फिर जो है जो लिक्विड आता है उससे हाथ धो। ध्यान रखो, कोरोना का बहुत ज़्यादा फैल रहा है।